अंतर्राष्ट्रीय विधि की आज की क्लास में एमए सेमेस्टर 3 के सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। मैं संजय गुप्ता आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ इस इंटरनेशनल लॉ की क्लास के संदर्भ में। इफ़ यू रिमेंबर दैट लास्ट टाइम आई हैड बीन टॉकिंग टू यू अबाउट द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, that is the theories of relationship between the international law and the municipal law, है ना। और उस संदर्भ में हमने आपसे बात किया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के मध्य कई प्रकार के सिद्धांत हैं जो इन दोनों प्रकार की विधियों के संबंधों को निर्धारित करते हैं। फॉर इंस्टेंस आई टोल्ड यू अबाउट द मोनिस्टिक थ्योरी, अबाउट द डुअलिस्टिक थ्योरी, अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी. Then there was special adoption theory, there was delegated theory. So in these, in this way there were 5 theories that I had explained you regarding the relationship between the two kinds of laws. Now today I would like to briefly touch on the British practice or the British attitude towards the international law. ब्रिटेन का क्या दृष्टिकोण रहा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट हैज़ बीन द अमेरिकन एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ एंड सो डज व्हाट हैज़ बीन इंडियाज ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ. वी मस्ट नो, वी मस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, all major countries, they have their own viewpoints, they have their own understanding about the international law. For instance, these days we are hearing so much about China. So China has its own understanding about the international law. In the same way, the erstwhile Soviet Union, it has its own dimensions about international law. America, India and many other leading countries of the world, they had their specific views or attitude towards the international law. So when we discuss about what is the attitude or what has been the attitude of Britain towards international law, अर्थात ब्रिटेन का राष्ट्रीय विधि के ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति उसके प्रति क्या विचारधारा रही है, यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दैट ब्रिटेन इज अ कंट्री फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल लॉ इन मॉडर्न टाइम्स हैज़ टेकन बर्थ. आज के अगर संदर्भ में हम बात करें कि राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति ब्रिटेन में क्या दृष्टिकोण है, तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रिटेन ही वो देश है जहाँ से आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति होती है. इंटरनेशनल लॉ टेक्स बर्थ फ्रॉम इंग्लैंड and therefore you must be remembering that some time back, about a few months back, I had told you that it was Bentham only who had first used the term international law in modern times during the 18th century. Not only Bentham, there were other scholars as well, there were other political scientists or other legal scholars as well. For example, John Austin. For example, Henry Maine, for example, MacIver. So these are certain names who gave their ideas about international law or who contributed to the growth of international law in one way or the other. So keeping this fact in the background, there is a long-standing understanding in Britain that international law is a part of that international law is a part of the municipal law. That international law is a part of the domestic law or the national law of Britain. That is to say that international law is not at variance from the municipal law. अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध नहीं है, दोनों में कोई अनजाने वाला संबंध नहीं है. Both are not a stranger to each other. And specifically from the year 1735, there were certain court judgments, there were certain legal judgments
that proclaimed that established the idea that international law is an integral part of the municipal law of England. And in this respect, there was a Blackstonian doctrine of 1765. Justice Blackstone, he was a very eminent judge in England, and this Blackstonian doctrine is based on his name only. उन्हीं के नाम पर आधारित है ब्लैकस्टोनियन अवधारणा। और इस धारणा के ब्लैकस्टोन की इस अवधारणा जिसे हम कहते हैं ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्रिन, इट सेज दैट इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट regarding the status of international law in Britain, then the courts will have to accept the idea that international law is basically a part and parcel of the British laws. कि अर्थात ये जो ब्लैकस्टोन जो जस्टिस ब्लैकस्टोन थे, उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि अगर कभी ऐसा ये विवाद सामने आता है इंग्लैंड में कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्टेटस क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसका स्थान क्या है ब्रिटेन के आंतरिक कानूनों के संदर्भ में, देन ब्लैकस्टोन सेड, जस्टिस ब्लैकस्टोन सेड दैट इफ द ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ इज टेकन इनटू अकाउंट, कि अर्थात हमने आपको पहले बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के दो स्वरूप होते हैं, एक तो परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय विधि होता है और दूसरा होता है संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय विधि। One is the customary international law, which is also called as the traditional international law. That is that part that is traditional law. Traditional international law is that law which is based on customs, on conventions, on practices, which is largely based not on the written codes, not on the written laws, but on a general understanding between nations. अर्थात इसे हम कहते हैं परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय विधि या परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो ये मान के चलता है कि अंतर्राष्ट्र की परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय अर्थात जो परंपरा से जो अंतर्राष्ट्रीय विधि चली आ रही है वो परंपराओं पर आधारित है, वो प्रथाओं पर आधारित है, वो एक प्रकार के सामान्य समझ जिसे हम कहते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है, अनेक राष्ट्रों के मध्य जो जनरल अंडरस्टैंडिंग रहती है। फॉर इंस्टेंस, एक राज्य समझता है कि हमें दूसरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग। अ नेशन कंसिडर्स दैट इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू वेज अ वॉर अगेंस्ट अदर नेशन। और मान लीजिए अगर कोई ऐसा युद्ध होता भी है, कोई करने जा रहा है कोई राज्य, तो उसकी पूर्व सूचना अपने विरोधी राज्य को दे देगा कि हाँ मैं इस प्रकार का आक्रमण करने जा रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, this is a convention. So therefore Justice Blackstone said that if any question of traditional international law, that is if any question about international law that is based on the customs or conventions, that is a traditional international law, when any question arises with regard to the status of traditional international law in Britain, then the courts will always consider the fact that this traditional international law or international law based on customs and conventions is an integral part of the British municipal law. There won't be any question on this thing. तो इसलिए उन्होंने विभेद कर दिया। हमने आपको पहले ही बताया है कि दैट ब्रिटेन इज बेस्ड ऑन कन्वेंशंस, दैट देयर इज नो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लैंड, कि ब्रिटेन में कोई भी संविधान नहीं है, और अगर संविधान है तो वो परंपराओं पर आधारित है। सो देयरफॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशंस विल ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कन्वेंशंस एज एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एक संविधान जो स्वयं परंपरा पर आधारित है वो स्वाभाविक रूप से उस अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करेगा जो परंपरा पर आधारित है, जो स्वयं भी वो परंपरा पर आधारित है। सो इट इज़ अ केस ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ लॉज, ये ब्लैकस्टोन का मानना था। इसलिए उसने कहा इस प्रकार का जो परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा वो ब्रिटेन का अभिन्न हिस्सा समझा जाएगा
और इसे सभी ब्रिटेन के सभी कोर्ट इस बात को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून को मान्यता देंगे दैट ऑल कोर्ट्स इन ब्रिटेन वुड बी बाउंड टू एक्सेप्ट, दे आर बाउंड टू रिकॉग्नाइज the traditional international law or the international law that is based on the conventions. This was the Blackstonian doctrine or the Blackstonian concept of the relationship of international law with the municipal law. Both are not stranger to each other. And this doctrine was followed in a number of cases. 1765 में जस्टिस ब्लैकस्टोन ने ये अवधारणा दिया और उसके बाद कई प्रकार के और जजमेंट्स आए। ब्रिटेन के अलग अलग न्यायालयों से कई प्रकार के निर्णय आए इस संदर्भ में। एंड ऑल दोज डिसीजंस दे वर बेसिकली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट लेड डाउन बाय जस्टिस ब्लैकस्टोन। और ये लंबे समय तक इस प्रकार का ये काम चलता रहा, अर्थात ये अवधारणा बनी रही। बट इन द ईयर 1776 हम कह लें, इन द ईयर 1776 a very important case arose and that was the Franconia case. Franconia case, Franconia, Franconia, Franconia case, 1776। अब ये जो केस आया था, ये जो विवाद आया, ये वाद जो आया, इट अपटर्न्ड द ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्रिन। 1776 का ये जो महत्वपूर्ण फ्रैंकोनिया केस था, इसने ब्लैकस्टोन के द्वारा स्थापित विचारधारा को या अवमानना को या अवधारणा को पलट दिया। तो फ्रैंकोनिया केस में क्या कहा गया, इसका जो निर्णय था वो ये कहा गया कि दैट henceforth it will not be considered, it will not be regarded something as automatic or suo moto, that international law will be a part and parcel of the municipal law। अर्थात अब से इस बात को जो स्वतः ये मान लिया जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्र विधि का हिस्सा होगा, इस चीज को अब ये हम नहीं मानेंगे। और ये कहा गया इसमें कि that now it will have to be seen that a traditional international law or a law that is based on conventions, if that law has been accepted by the positive law of Britain, only then it will be considered to be as an integral part of the municipal law of Britain। अर्थात फ्रैंकोनिया केस ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को उसी हद तक, उसी सीमा तक हम ब्रिटेन की राष्ट्रीय विधि का हिस्सा मानेंगे जहां तक ब्रिटेन के संसदीय कानून, यानी जो प्रत्यक्षवादी जो कानून होंगे, जो सकारात्मक कानून होंगे, जो पॉजिटिव लॉज हैं। पॉजिटिव लॉज कौन से होते हैं? जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। सो इफ एनी इंटरनेशनल लॉ हैज बीन एक्सेप्टेड by the positive law of Britain, that is by a law made by the legislature of Britain, only then it will be considered to be as part of the British municipal law। अर्थात अब ऐसा नहीं माना जाएगा। फ्रैंकोनिया केस ने स्पष्ट कर दिया, now you just forget that all international law based on the traditions and customs would automatically be a part and parcel of British laws। That is not going to be same, that is not going to be any more of that kind। और इसलिए इसने ये बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। उसने कहा कि अब आप ये मान के चलिए, जिन परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून को ब्रिटेन की संसद ने स्वीकार कर लिया है, उसके संदर्भ में अगर कोई कानून बना दिया है, तभी हम इस प्रकार के परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून को ब्रिटेन की आंतरिक विधि का हिस्सा मानेंगे। बट इफ अ ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ और अ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड by the positive law of Britain, that is by a law made by the Parliament of Britain, then we are not going to accept the customary international law to be a part of the British municipal law। ये फ्रैंकोनिया केस था जो 1776 में इस चीज को इसने आकर पहले के निर्णय को पलट दिया। अब इस केस में ये कहा गया कि देखिए
ये ब्रिटेन इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, इस केस में ये भी कहा गया, देखिए कि जो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि दैट ब्रिटेन का जो टेरिटोरियल जो वाटर है वो समुद्र तट से 3 मील तक ही रहेगा। लेकिन अगर 3 मील के बाद की अगर कोई चीज़ अगर डिस्टेंस है, समुद्र तट से 3 मील के आगे का कोई डिस्टेंस है, तो वो ब्रिटेन के टेरिटोरियल वाटर्स में काउंट नहीं होगा। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये जो कहा गया था इस केस के संदर्भ में, है ना। तो अर्थात इस तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून से अगर ब्रिटेन के हाथ बंध जाते हैं तो इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय यानी इस प्रकार का परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये केस में कहा गया। और जो कहा गया, जो पाबंदी लागू कर दिया है, दैट इज द रिस्ट्रिक्शन दैट हैज बीन इम्पोज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ with regard to the territorial waters of Britain, that is beyond the 3 nautical mile waters from the territorial from the sea coast of Britain will not come under the British jurisdiction, will be undone. It was sought to be remove this kind of barrier. ये माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इस प्रकार का प्रतिबंध लगाता है उसको हम हटा देंगे। और 1978 में इन द ईयर 1778 टेरिटोरियल वाटर्स जुरिस्डिक्शन एक्ट was passed by the British Parliament. Territorial Waters Jurisdiction Act of 1778 was passed by the British Parliament. ब्रिटेन की संसद ने इस प्रकार का यह अधिनियम या कानून बनाया और उसने इस रोक को हटा दिया। अब देखिए, क्लियर समझ लीजिएगा, बड़ा एकदम स्पष्ट ये बात हो रही है कि फ्रैंकोनिया केस ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून इफ़ इट टाइज आवर हैंड्स एट द बैक, अगर वो हमारे हाथ बांध देता है तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या औचित्य है। और वो एग्जाम्पल दिया कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्र तट से 3 मील तक 3 नॉटिकल माइल तक ही कोई देश की टेरिटोरियल वाटर्स होगा, बट बियॉन्ड दैट देयर विल बी नो डोमेस्टिक टेरिटोरियल वाटर्स। बट ब्रिटेन वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ लिमिटेशन बाय द इंटरनेशनल लॉ। ब्रिटेन इस प्रकार की सीमा को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था कि समुद्र तट से 3 नॉटिकल माइल के बाद आपका कोई प्रादेशिक समुद्री नहीं रह जाएगा। एंड टेरिटोरियल वाटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, and moreover many of the countries they consider that territorial waters should be an extended area in the sea waters from the sea coast। और आज की तारीख में आप जानते होंगे it is 12 nautical miles from the sea coast। आज के तारीख में, आज के संदर्भ में समुद्र तट से 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर्स होता है, उसके अगले 12 नॉटिकल माइल तक कंटिगुअस जोन होता है। इसलिए ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पारित किया जिसका नाम था टेरिटोरियल वाटर्स जुरिस्डिक्शन एक्ट। और इस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा जो टेरिटोरियल वाटर जुरिस्डिक्शन जो था, ब्रिटेन का जो समुद्र तट का जो क्षेत्राधिकार था पानी पर, समुद्र तट से जो प्रादेशिक जल पर ब्रिटेन का जो अधिकार था उसको बढ़ा दिया गया और 3 मील के आगे कर दिया गया, समवेयर एक्सटेंडिंग अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये फ्रैंकोनिया केस में कहा गया कि अर्थात इंटरनेशनल लॉ कैनॉट बाइंड आवर हैंड्स, इट कैनॉट लिमिट आवर जुरिस्डिक्शन। वी विल बी दैट इंटरनेशनल लॉ वुड बी एक्सेप्टेड ओनली अप टू द पॉइंट वेयर इट इज एक्सेप्टेड, वेयर इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द पॉजिटिव लॉ ऑफ ब्रिटेन। यानी जो ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्रिन में कहा गया था कि दैट an international law that is based on the customary law would be automatically acceptable to us, that is to England। चूंकि इंग्लैंड भी परंपरा पर आधारित है, इंग्लैंड परंपराओं का महत्व समझता है, इसलिए हम परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून को महत्व देंगे, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस आधार पर उसने उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन 1776 के इस फ्रैंकोनिया केस में ये बात स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल ये इसका आदर्शवादी स्वरूप नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली आइडियलिस्टिक इन कैरेक्टर, whereas the municipal law is based on the applied aspects। It is idealist in character, international law उसका एक आदर्शवादी स्वरूप है,
लेकिन उस आदर्शवाद को हर एक राज्य स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। इसलिए फ्रैंकोनिया केस ने कहा था हमें व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें आचरण करना चाहिए, हमारे देश को उसी प्रकार से अपना कानून बनाना चाहिए। So after the Franconia case of 1876, another very important case arose and that was in the year 1905, 1905 में एक दूसरा एक आपके लिए तीसरा ये एक महत्वपूर्ण निर्णय आया। पहला तो ब्लैकस्टोनियन जो डॉक्ट्रिन था, जस्टिस ब्लैकस्टोन ने अपने कई अदालती फैसले में बात सुनाया। उसके बाद फ्रैंकोनिया केस आया जिसने पहले के निर्णय को पलट दिया और अब 1905 का जो निर्णय है, यानी केस का नाम वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस रेक्स। वेस्ट रैंड, वेस्ट है ना, WEST, वेस्ट रैंड, RAND, रैंड, वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस रेक्स। This is the name of the case that occurred in the year 1905। और इस केस ने क्या किया, फ्रैंकोनिया केस के निर्णय को पलट दिया। It upturned the judgment given in the previous case of Franconia case of 1876। और इस वेस्टरैंड विवाद में ये कहा गया, अदालत के द्वारा कहा गया कि that a law that has been accepted by the civilized nations of the world will be also accepted by the British municipal laws। It will be acceptable to Britain also, that is a law that has been accepted by the civilized nations of the world, that is an international law based on the customary law, based on the customs or conventions. If such a kind of international law has been accepted by the majority of the nations, majority of the civilized nations, shall be then equally acceptable to Britain। और इस केस ने कहा a law that has been a law about which Britain holds a very positive opinion and a law which has been accepted by many of the nations, Britain is also going to accept that law, है ना। तो अगर जैसे पहली बात तो कि अधिकांश राज्यों ने, सभ्य राज्यों ने उसको अपनी स्वीकृति दे दिया है, यदि इस प्रकार के परंपरा आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून को तो ब्रिटेन के लिए भी वो मान्य होगा। और यदि ब्रिटेन ने उसके ऊपर अपना पहले कोई वक्तव्य दिया है ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून पर, परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर, तो वो अन्य राज्यों के साथ साथ ब्रिटेन को भी मान्य होगा, स्वीकार्य होगा। सो दिस वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी, it again brought in the old, you can say, judgment of the courts, है ना। तो जो ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्रिन था उसको रिस्टोर कर दिया, है ना, और फ्रैंकोनिया केस को अस्वीकार कर दिया, है ना। उसने कहा कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को ब्रिटेन की राष्ट्र विधि का अंग बनाने के लिए हमें कोई संसद के द्वारा पहले कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। It may be done in other countries. This may have become a practice for other countries, but at least for Britain, this is not going to be so. Britain will always recognize convention-based international law as an integral part of its own municipal law. Britain हमेशा ऐसे परंपरा आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून को अपने राष्ट्र विधि का अंग मानता रहेगा। लेकिन इन्होंने इस केस में इन्होंने दो बात कही, अपवाद जिसको कहे। पहला जो ये था कि द फर्स्ट एक्सेप्शन वाज दैट such a customary international law should not be clashing with the municipal law of the country। अर्थात इस प्रकार का जो परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून ब्रिटेन के किसी भी कानून से उसका टकराव ना हो रहा हो, है ना। If such an international law is having no clash with the municipal law of England, then it will be accepted by the municipal law of England, that is by England, by Britain। ये इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ठीक। दूसरी बात, ये जो परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, it should not be restricting the rights of the people of Britain।
कि अगर परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून से ब्रिटेन के लोगों के मौलिक अधिकार सीमित हो रहे हों, बाधित हो रहे हों, तब ऐसे में वो इस परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार नहीं करेगा। सो दीज वर द टू कंडीशंस, दीज आर द टू कंडीशन दैट दिस केस laid down with regard to the acceptability of international law with the municipal law of Britain। तो पहली बात क्या था? पहली बात ये थी जो अभी हमने बताया कि अर्थात वो किसी भी प्रकार से उसका क्लैश ना हो रहा हो। इंटरनेशनल लॉ shouldn't be having any kind of contradiction or clash with the municipal law of Britain। और दूसरी बात क्या है? द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटेन और द ब्रिटिश पीपल दे शुडंट बी गेटिंग इफेक्टेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। तो अगर ऐसा दोनों में कुछ नहीं है समस्या, देन ऑटोमेटिकली इट विल बी हैविंग, इंटरनेशनल लॉ विल हैव द सेम प्लेस एज अ म्यूनिसिपल लॉ हैव इन ब्रिटेन। तो दोनों एक प्रकार से मिले जुले दिखाई देंगे। और इसको ब्लैकस्टोन ने कहा था, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्ट्रिन भी कहते हैं इसको, अर्थात सम्मिश्रण कानून, अर्थात वो सम्मिश्रित हो जाएगा, वो घुल मिल जाएगा। इंटरनेशनल लॉ विल डिजॉल्व विद द म्यूनिसिपल लॉ। पता ही नहीं चलेगा ये इंटरनेशनल लॉ है, ये म्यूनिसिपल लॉ है, अर्थात इस तरह से उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, इस प्रकार से उसका सम्मिश्रण हो जाएगा राष्ट्र विधि में। बस ये दो कंडीशन उसने कहा है। पहली बात कि दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो रहा हो, बाधा ना हो रही हो, क्लैश ना हो रहा हो, टकराव ना हो रहा। और दूसरी बात, जनता के अधिकारों का उससे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़ रहा हो। ये दूसरी बात कही। अच्छा, एक बात जस्ट जो एक स्टार्क है, जे.जी. स्टार्क है, उसने दो बातें और भी कही हैं दोनों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए। उसने एक तो ये कहा कि दैट insofar as the executive is concerned, he says that we know that in Britain executive has its own jurisdiction, it has its own domain to work। कार्यपालिका का अपने एक क्षेत्राधिकार होता है और वो ऐसा क्षेत्राधिकार है कि जहां पर ब्रिटेन के न्यायालयों की पहुंच नहीं है। For instance, he says that the declaration of war or the conclusion of peace or the doing of any treaty, they all lie in the jurisdiction of the executive, that it lies in the domain of the executive or the king or queen or the prime minister or the government। अर्थात कार्यपालिका के क्षेत्र में जो अधिकार हैं, जो विषय हैं, वो ये उनके अपने विषय हैं, अर्थात उनका अपना क्षेत्राधिकार है। और इस कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चाहे युद्ध की घोषणा हो, चाहे युद्ध का समापन हो, चाहे शांति की स्थापना हो, है ना, चाहे कोई ट्रीटी करने की बात हो, संधि करने की कोई बात हो, तो कार्यपालिका के क्षेत्र में जो विषय आते हैं उन विषयों को न सीमित किया जा सकता है, न बाधित किया जा सकता है बाय द ब्रिटिश कोर्ट्स। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटेन की एक आंतरिक संरचना है कि कोर्ट जनरली दे डू नॉट इंटरफियर विद द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय लेती है विच मे बी कॉन्ट्रडिक्टिंग विद द कस्टमरी बेस्ड इंटरनेशनल लॉ, देन आई एम सॉरी दैट सच इंटरनेशनल लॉ will not be called as violated by the executive। अगर कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय लेती है युद्ध के संदर्भ में, युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में, शांति के संदर्भ में, ट्रीटी करने के, और जो कस्टमरी बेस्ड इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप नहीं है, तब भी ऐसे में उसे ब्रिटेन की राष्ट्र विधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का अवहेलना नहीं मानी जाएगी। यह अपवाद है ना। जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ वो कहता है आप युद्ध ना करिए, है ना, युद्ध की घोषणा मतलब युद्ध नहीं शुरू करना चाहिए, युद्ध शुरू किया जल्दी जल्दी उसको समाप्त कर दीजिए, है ना, अधिक से अधिक शांति के बारे में बात करिए। बट नेशंस ऑलवेज डू नॉट फॉलो दिस काइंड ऑफ डिक्टम। नेशंस हैव देयर ओन इंटरेस्ट और सेल्फिश और वेस्टेड इंटरेस्ट।
So they always move according to their own game plan or according to their own national vision. And suppose if the executive takes such a decision of declaring war or concluding peace, then it cannot be called as that executive has violated the international law, कि अर्थात कार्यपालिका ने अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया है. सो दिस इज एन एक्सेप्शन, है ना. तो ये एक एक्सेप्शन हो गया. और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन ये है कि यू नो दैट इन ब्रिटेन इट इज़ अ मोनार्क दैट इज हैविंग ऑल पावर्स. दो द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरन, बट अगेन देन द मोनार्क इज ऑल्सो हैविंग सम पावर्स. उसका भी अपना कोई डोमेन है. राजा या रानी की जो प्रथा है वहाँ पर, जिसे हम सम्राट कहते हैं, सम्राट की भी अपनी कोई एक शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति अधिकांशतः प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के द्वारा प्रयोग की जाती है. तो इसलिए अगर सम्राट प्रधानमंत्री के कहने पर किसी देश को स्वीकार करता है, मान्यता प्रदान करता है, तो इस बात की जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं कोई जना कि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है, ये परंपरावादी या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध है. कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि सम्राट का, जैसे हमने कहा, कार्यपालिका का एक अपना अलग क्षेत्र होता है, युद्ध करना या ना करना. उसी तरह से सम्राट का भी अपना अलग डोमेन, कार्य क्षेत्र है, जो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर करता है. इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को देखते हुए यदि सम्राट ऐसा कोई निर्णय लेता है राज्यों को मान्यता देने के संदर्भ में, या कोई अंतर्राष्ट्रीय जगत में काम करता है वो, तब ऐसे में इंटरनेशनल लॉ, जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ है, अगर उससे वो कुछ प्रभावित हो रहा है तो भी ब्रिटेन की कार्यपालिका को सीमित नहीं किया जा सकता, सम्राट के कार्य को सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये उसका अपना स्पेशल पावर्स है, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं. तो ये दो अन्य ये जो अपवाद हैं इसके ऊपर कहे गए हैं, ना. तो दो तो स्टार्क ने बताया और दो ये और अलग है, जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि जब ब्रिटेन की एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं. और एक चीज़ और है कि सो फार एज द ट्रीटीज आर कंसर्न, अगेन ट्रीटीज ऑल्सो इम्पोज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ, है ना. देखिए, कहना ये सरल है बहुत. इट इज़ वेरी इजी टू से दैट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश म्यूनिसिपल लॉ. ये कहना बहुत आसान है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. बहुत सारे इसमें सीमाएं लग जाती हैं. फ्री बांटना तो बहुत सरल काम है. कोई भी आप चीज़ फ्री में बांटिए, सरकार कहती है फ्री में बांटेंगे, सरकार कहती है कि हम किसानों के ऋण को माफ़ कर देंगे, लेकिन जब ऋण माफ़ करने वाला कानून बनता है, देन वी फाइंड दैट देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स. ये कहा जाता है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, हम केवल उन्हीं का ही राइट ऑफ करेंगे लोन. जो जैसे आप कह लिए कि मान लीजिए किसी ने, जिसने 5,000 तक का 10,000 तक का बैंकों से कर्जा लिया होगा, बस हम उन्हीं किसानों के ऋण माफ़ करेंगे, है ना. और वो भी जो पिछले 6 महीने में लिया हो, जो ऋण लिया हो. किसी ने 1 साल 1.5 साल पहले लिया हो तो सरकार कहते हैं हम उसको माफ़ नहीं करेंगे. किसी ने 12-15 हज़ार का ऋण लिया तो उसको माफ़ नहीं करेंगे, है ना. फिर वो BPL कैटेगरी का होना चाहिए. तो देखिए क्या है इसमें, एक ग्रैंड प्रॉमिस तो कर दिया गया. A grand announcement is generally made that we are going to do this, that. But when the actual legislation comes, we find that there are many hidden clauses, है ना. उसमें बहुत सारे छुपी हुई बातें होती हैं, जिसको फिर पढ़ने के बाद लगता है अरे it is nothing but an eye wash. In the same way, when it is said that the traditional international law or the customary international law is a part and parcel of the British municipal law, it is easier said than done. इसको कहना ये सरल है, लेकिन अब आप देख रहे हैं ना कैसे एक के बाद एक उसमें कंडीशंस लग रही हैं. कार्यपालिका के लग रहा है, उसमें कार्यपालिका कुछ भी कर सकती है.